بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات اقدس نے ہم سب کو رمضان جیسے مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اسی پر بس نہیں، رمضان المبارک کے مہینے کی روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن کریم کو تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عنایت فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قیام اللیل، ذکر و اذکار، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کرنے، رب کو خوش کرنے، خوشنودی رحمان والا عمل انجام دینے کی اللہ نے ہمیں توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس پر ہم جیسے گنہگار مسلمان جتنا بھی اپنے رب کا شکریہ ادا کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کم ہے۔ آج کا یہ دن بڑا مبارک اور بڑا فضیلت والا، انعام والا اور خوشخبری والا دن ہے، اس لیے کہ یہ آج کا دن عید الفطر کا دن ہے۔ عید کے معنی ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ عید کہتے ہی ہیں اس کو جو بار بار لوٹ کر آئے، اس لیے کہ یہ عید ہر سال لوٹ کر بار بار آتی ہے۔ ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، اسی لیے عید کو عید کہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ نیک شگون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عید کی خوشیاں بار ہماری زندگی میں لائے، اور فطر کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا۔ غور سے سنیے گا، فطر کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، اس لیے کہ یہ آدمی اس دن روزے کے سلسلے کو توڑ دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، فرض روزے کے سلسلے کو۔ ایک مہینہ سے روزہ رکھنے کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، آج کا دن چونکہ عید الفطر کا دن ہے، تو عید کا معنی میں نے بتایا کہ عید کے معنی آتے ہیں بار آنا، اور فطر کا معنی توڑ دینا۔ تو یہ عید جو بار ہر سال لوٹ کر آتی ہے، یہ ایسا دن ہے، یا ایسی عید اور ایسے تہوار ہیں، ایسے فیسٹیول کے یہ دن ہے کہ جس دن آدمی روزے کے سلسلے کو توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ افطار کو بھی افطار اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی روزہ کو توڑ دیتا ہے۔ افطار سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ روزہ دار
बिल्कुल अजान से करीब 5 मिनट पहले या 5 सेकंड पहले सारी चीजें सामने रखी होती है, लेकिन बंदा खाता नहीं है। जैसे ही अजान होती है तो वो इफ्तार कर लेता है, इफ्तार करता है तो रोजा खुलता है, तो टूटता है ना भाई। तो उलमा ने लिखा है कि इफ्तार को भी इफ्तार इसलिए कहते हैं कि ये रोजा तोड़ देता है। दोस्तों बुजुर्गों, ये ईद उल फित्र का दिन बड़ा मुबारक और मुतहर्रक दिन है, बड़ा फजीलत वाला दिन है। हदीस पाक में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये दिन बड़ा मुबारक दिन है। वो इस लिहाज से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अभी जो रात गुजरी है, चांद की रात, वही ईद की असल रात थी। ये तो ईद का दिन है, ये जो रात गुजर गई, गुज़िश्ता रात, वो ईद की रात थी। इस रात के बारे में हदीस पाक में आता है कि इस रात को लैलतुल जाइज़ह कहा गया है, इनाम वाली रात। अल्लाह तबारक व तआला रोजेदारों को इस रात में इनाम अता फरमाते हैं। और इस रात के बारे में लिखा हुआ है हदीस में कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये मफहूम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस रात में, यानी गुज़िश्ता रात, जो रात गुजर गई, चांद की रात, वही ईद की रात थी, उस रात के बारे में फरमाते हैं कि इतने लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ादी अता फरमाते हैं कि जितने लोगों को अल्लाह ने पूरे महीने में जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए हैं, उससे ज्यादा लोगों को अल्लाह ताला सिर्फ उस एक चांद की रात में अल्लाह ताला खुलासी और आज़ादी और नजात अता फरमाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रोजेदारों को उसका अज्र, उसका बदला, उसका सिला अता फरमाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अहिया लैलतुल क़द्र, क्या वो लैलतुल क़द्र है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के पूछने पर फरमाया कि नहीं, वो लैलतुल क़द्र तो नहीं है, लेकिन उसूल ये है कि मजदूर को मजदूरी बिल्कुल आखिर में दी जाती है, लास्ट में दी जाती है। तो गोया कि आज मजदूरी मिलने का दिन है, इनाम मिलने का दिन है। ये मोमिनों के लिए इकराम का दिन है, इनाम का दिन है। ये वो दिन है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इस दिन के बारे में पता चलता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मुबारक दिन इतना फजीलत ये दिन रखता है अपने आप में कि जब नमाजी जब ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए अपने घरों से बन ठन कर, सज सवर कर, अच्छे लिबास में मलबूस होकर, अच्छी खुशबू से अपने आप को और पूरे मोहल्ले को और पूरी बस्ती को मुअत्तर करके जब वो बंदा मस्जिद की ओर आता है, तो हदीस पाक का ये मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं और कतार लगा के लाइन लगी रहती है, और हर फरिश्ता ये चाहता है कि तुमसे पहले एक दूसरे से सबकत करना चाहते हैं। फरिश्ता चाहता है कि एक दूसरे से पहले हम इन नमाजियों से, इन रोजेदारों से, आज के दिन ये जो नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले हम इनसे मुसाफा करें, इनको गुड न्यूज सुनाएं, खुशखबरी दें। सोचने का मकाम ये है कि हम जैसे गुनहगार कि जिसका तज़किरा, जिसका मेंशन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श में मुक़द्दस मखलूक, नूरानी मखलूक, फरिश्ता जैसी मासूम मखलूक हम जैसे गुनहगारों क्या तज़किरा आसमानों में कर रहा है, और वो आसमान से उतर कर ज़मीन पे आकर हम जैसे गुनहगारों से मिलने के लिए, मुसाफा करने के लिए आता है। ये कितनी बड़ी बात है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शायर ने कहा है कि लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद। ये अरबी का शेर है और इसके जो है ना कुछ अशार के कुछ अशारे ज़ैल में
کہنے والے نے کہا ہے کہ لیسل عید لمن لبسل جدید۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دن اگر خوشیاں منائیں تو کون منائے؟ عید کے دن خوشیاں کون منائے؟ کس کی خوشی ہوگی آج؟ کس کا آج کن لوگوں کی عید ہے؟ آج کس کے تہوار ہیں؟ کون آج خوشی منانے کا مستحق اور حق رکھتا ہے؟ تو دوستو بزرگوں، شاعر نے اسی کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے لیسل عید، لیسا کے معنی عربی میں نہیں کے آتے ہیں، عید نہیں ہے، لیسل عید لمن لبسل جدید، اس بندے کی عید نہیں ہے جس نے صرف نیا کپڑا پہن لیا۔ جدید کے معنی نیا کے آتے ہیں، لبیسا کے معنی کپڑے کو اپنے آپ میں زیبتن کر لینا۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، بلکہ کہنے والے نے کہا ہے کہ انما العید لمن تاب ولا یعود، کہ عید تو اس کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو رو دو کے منا لے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ کے، رات میں قرآن کریم کی صورت میں، تراویح کی صورت میں قرآن کریم کو پڑھ کے، سنا کے، نمازیں پڑھ کے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اور گناہ سے بچ کے پورے مہینے کی جو قدردانی کر لیتا ہے، آج کا دن وہ خوشی منانے کا مستحق اور استحقاق حق کا وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ عید اس کی نہیں ہے لمن تبخر بالعود، کہ جو اچھی خوشبو سے اپنے کپڑے کو مہکا لے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو رو دھو کے منا لے، اس کی عید ہے، ہر ایک کی عید نہیں ہے۔ شاعر نے یہاں تک کہا ہے لیس العید لمن رکب الخطایا، لیس العید لمن ترک الخطایا، کہ عید اس کی نہیں ہے لمن رکب المطایا، کہ عید اس کی نہیں ہے جو اچھی سواری میں سوار ہو کر گھوم لے، چلے آئیں عیدگاہ جائیں، گھومنے چلے جائیں، لوگوں کو وش کرتے رہیں، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے اپنے پلسرات کو اور اپنے آخرت کو سوار لے، دنیا میں نیک عمل کر کے۔ عید اس کی ہے، ہر ایک کی عید نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عید تو اس کی ہوتی ہے جو بندہ اپنے رب کو رو دھو کے منا لے، اور وہ بندہ جو پورے مہینے کے روزے نہ رکھے، نمازیں نہ پڑھیں، تراویح نہ پڑھیں، رمضان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کریں، وہ لاکھ نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، عیدگاہ میں آ جائے، لیکن آج اس کو خوشیاں منانے کا کوئی حق نہیں حاصل ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی دو عید رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دو دن ایسے بنائے اور رکھے ہیں جس دن مسلمانان اسلام پورے عالم اسلام میں، خطہ ارض میں، پوری دنیا کی دھرتی میں بسنے والے تمام جہان کے مسلمان دو دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں، دو ان کی عید ہوتی ہے۔ ایک عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس عید الفطر کے کانسیپٹ کو، اس کے تصور کو اگر دیکھیں گے تو غیروں کے جو عید اور تہوار ہے، غیروں کی طرح مسلمانوں کی عید اور تہوار میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہودیوں کی عید تو یہ ہے کہ ان کے گزشتہ واقعے کو انہوں نے جو ہے نا عید تصور کر لیا۔ عیسائیوں کے یہاں عید کا تصور یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کو، جو کہ بالکل غلط ہے، کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ عید، کسی کے یہاں ہولی اور دیوالی، اور اسی طرح عید شب و روز اور مہرجان، اس کو لوگوں نے عید سمجھ لیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں ایسی کوئی گزشتہ پچھلے واقعے کو عید کا دن تصور قرار نہیں دیا ہے، بلکہ عید کے دو دن اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، خاص کیے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اور اس کے فلسفے کو آپ سمجھیں کہ مسلمانوں کی دونوں عید، غیروں کے تہوار کا مسئلہ یہ آتا ہے، مطلب یہ آتا ہے کہ عید کا مطلب خوشی، اور خوشی میں جو لمیٹیشن ہے، جو حد ہے، ساری حدوں کو توڑ دینا، کراس کرنا۔
चाहे अब उसकी जान चली जा रही है, शराब पी कर कोई बदमस्त होकर बेहोश कहीं पड़ा हुआ है, या तेज रफ्तार गाड़ी चला के एक्सीडेंट के जरिए उसकी मौत हो जा रही है, लेकिन मुसलमानों की ईद और त्योहार का फलसफा ये है कि दोनों ईद को ईद से पहले इबादत पर मुख्तस और खास किया है कि पहले अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को पूरा किया जाता है, उसके बाद इनाम के तौर पर, सिला के तौर पर, बदला के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ये 2 दिन अता फरमाए हैं कि जब इन इबादतों को पूरा कर लोगे तो ये 2 दिन आते हैं जिस दिन तुम खुशियां मनाओगे, और वो खुशी की भी एक हद होगी, एक दायरा है। अब देख ले, मुसलमाना ने इस्लाम ईद उल फित्र को देखे, पहले 1 महीने का रोजा रखने का हुक्म दिया, पूरा 1 महीना बंदा रोजा रखता है, उसके बाद ये महीना जिसको उर्दू में शव्वालुल मुकर्रम कहते हैं, आज शव्वाल की पहली तारीख है, इस तारीख को मुसलमाना ने इस्लाम ईद की नमाज अदा करते हैं। तो आज के दिन ईद मनाने के लिए मुसलमाना ने इस्लाम ईदगाहों में, मस्जिदों में आते हैं, तो दरअसल अल्लाह का जो हुक्म था 1 महीना रोजा रखने का, खाना पीना, जिमा, नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ने का, मुसलमानों ने उस तमाम हुक्मों को फॉलो किया, पूरा किया, पाबंदी के साथ अमल किया। उस अमल के सिले और बदले में, नतीजे में मुसलमाना ने इस्लाम को अब इस दिन नमाज ईद उल फित्र 2 रकअत नमाज अदा करने की अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये परमिशन है कि जाओ ये नमाज पढ़ो। और देखें, ईद में खुशी मनाने का दिन है, लेकिन आज भी ये नहीं कहा कि खुशी ऐसे मनाओ कि कहीं भी जाओ फिरो घूमो, बल्कि कहा कि 2 रकअत नमाज पढ़ो। शुक्रिया के तौर पर ये 2 रकअत तुम माथा टेको जमीन पर, और इस बात का ये शुक्रिया होगा, ये इस बात की अलामत होगी कि जो 1 महीने रोजा रखने का हुक्म दिया था वो तूने सही सही पूरा कर दिया। तो अब तुम माथा टेक कर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हो कि अल्लाह तूने रोजा रखने का 1 महीना हुक्म दिया था, अल्लाह हमारे अंदर बिसात नहीं थी, तूने हमें तौफीक अता फरमाई है, तुम्हारे फजल और करम से हमने इस महीने का रोजा रखा। आज शुक्रिया के तौर पर हम सजदा करके, माथा जमीन पर रगड़ कर अल्लाह हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए इस नमाज के लिए कोई अजान भी नहीं, कोई इकामत भी नहीं, बल्कि अजान और इकामत को आज के दिन इसको रोक दिया गया है, हत्ता के इशराक की नमाज पढ़ने को मना कर दिया गया है। ईद उल फित्र की नमाज से पहले और ईद उल फित्र की नमाज के बाद कोई भी नफल नमाज पढ़ने को मना कर दिया गया है। अल्लाह ये बतलाना चाहता है कि मैंने 1 महीने का जो हुक्म दिया था उस हुक्म को तुमने पूरा कर लिया है, लिहाजा आज के दिन नफल भी नहीं, अजान भी नहीं, इकामत भी नहीं, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि आज मेरा बंदा और मैं बहुत जल्दी मिलना चाहता हूं, इसलिए अजान को भी बीच से रोक दिया गया, इकामत भी रोक दी गई, आज नफल को भी मना कर दिया गया ताकि मेरे हुक्म को पूरा करके मेरा बंदा आए और मेरे जबीने नियाज को मेरे आगे झुका दे, मेरी जमीन में सजदा करे और मुझे राजी कर ले। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, फरमाते हैं कि फरिश्ता हर एक नमाजी जब नमाज ईद अदा करने के लिए आता है तो मुसाफा के बाद ये गुड न्यूज, खुशखबरी सुनाते हैं कि जाओ आज का दिन मगफिरत का सामान, आज के दिन अल्लाह ने सबकी मगफिरत फरमा दी। आज के दिन गोया के ऐसा है कि बंदा जिस तरह पाक साफ होकर अभी पैदा हुआ है, अभी जना है, वैसे ही घर लौटता है, वैसे ही बिल्कुल पाक साफ होकर बंदा आज नमाज ईद अदा करने के बाद घर लौटता है। ठीक उसी तरह जिस तरह बकरीद की नमाज के बाद बंदा लौटता है, जो हाजी हज करने जाते हैं और वहां से लौटते हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि आज अपनी माँ के पेट से जना है, वैसे ही बंदा साफ सुथरा होकर लौटता है। लेकिन मैंने शर्त बता दी कि उनके लिए जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, जो अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया उनके लिए कोई ईद नहीं, कोई सईद नहीं, बल्कि उनके लिए वईद है। उलमा ने लिखा है कि ईद तो उनकी है जिन्होंने रब को राजी कर लिया, ईद भी उनके लिए
जदीद भी उनके लिए, सईद भी उनके लिए, और जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया ना उनके लिए ईद है ना उनके लिए सईद है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वाईद है। वाईद के माने पकड़ के आते हैं, डांट डपट के आते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जुमातुल मुबारक के हवाले से, ईद उल फित्र के खुतबे के हवाले से ये बात आप समाअत कर लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से और तारीख़ी रिवायतों से हमें ये पता चलता है कि आज के दिन के बारे में पता चलता है, बताया गया है, किताबों में ये बात लिखी हुई है कि असल ईद जिनको करार दिया है वो यतीम, कमज़ोर, बेवा, गरीब लोगों का ईद करार दिया गया है। भाई जिनके यहाँ सब कुछ है, पैसों की कमी नहीं है, खानों की कमी नहीं, उनके यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। उनके बच्चों के जेब में हर दिन पैसा है, उनके बच्चे हर दिन घर में अच्छे खाने खा रहे हैं, लेकिन जिनके यहाँ नहीं है, गरीब है, मिस्कीन है, आज जब ज़कात की, सदक़तुल फ़ित्र की रकमें उनके यहाँ जाती हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ख़रीदते हैं, अच्छे खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और उनकी शरीयत की बातों और हद से पता चलता है कि आज की ईद गरीबों की ईद है, सबकी नहीं है। इसलिए मैं आज कि इस खुतबे के उन्वान के हवाले से मैं आप सबको ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप अपने अपने घरों में जाएं, महल्ले में जाएं, अगल बगल और पड़ोसियों को आप देखें, उनके यहाँ अगर किसी चीज़ की कमी है और अल्लाह ने आपको दिया है, नवाजा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल फरमाएं। अल्लाह तबारक व ताला मेरी ज़ुबान से जो भी बातें अब तक कहलवाई हैं, तमाम बातों को अल्लाह ताला अपने फजल व करम से कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक व ताला हमें जो रोज़ा रखने का हुक्म दिया था, तरावीह, इन तमाम अमलों को, नेक अमलों को अल्लाह ताला हम जैसे गुनहगारों के हक़ में कबूल फरमा ले। और जो कमी, कोताहियाँ, गलतियाँ हो गई है, चूक हो गई है, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से गलतियों को माफ़ फरमा ले। चूक जो रह गई है अल्लाह ताला उस कमी को भी दूर फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।